Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Welcome to online class of Financial Statement Analysis and Valuation. Today we are conducting our 6th lecture and I'm your instructor Sayyida Arujna. Class in previous lecture we discussed about the comparative financial statement analysis. We discussed about the common size financial statement analysis and today we are going to start ratio analysis. In ratio analysis we will talk about the liquidity ratios particularly, and we will calculate current ratio, quick ratio and cash ratio. Again, this is a flowchart of financial statement analysis tools where we have covered so far comparative financial statement analysis, common size financial statement analysis, and we are going to discuss ratio analysis in our today's lecture and in our upcoming lectures. Let's start ratio analysis. Ratio analysis is a quantitative process used for calculation of financial ratios, जहाँ पे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की वेलबींग को चेक कर रहे हैं, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को चेक कर रहे हैं, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हैं और आप ये देख रहे हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है, आपकी फर्म जो है वो उसकी लिक्विडिटी कितनी है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, एक्टिविटी वाइज कैसी है, डेट के हिसाब से कैसी है और सॉल्वेंसी के हिसाब से इफ यू आर बोरोइंग लॉन्ग टर्म जो लोन्स हैं तो इन दैट पर्टिकुलर केस अगर क्रेडिटर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने आपको लोन जो है वो ग्रांट करना है तो इससे पहले वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी चेक करेंगे. तो इस तरह डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका जिस तरीके से आपकी फर्म के साथ रिलेशनशिप है अकॉर्डिंगली वो अपनी फाइनेंशियल रेशियोज को कैलकुलेट करेंगे. और अगर कोई इन्वेस्टर है वो ये देखना चाह रहा है कि आपकी फर्म जो है वो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं, तो वो अर्निंग पर शेयर, प्रॉफिटेबिलिटी और ये सारी कैलकुलेशंस जो है, ये सारे एनालिसिस जो है आपकी फर्म के वो करके और फिर उसको लगेगा कि अगर आपकी फर्म जो है वो प्रॉफिटेबल है तो वो इन्वेस्टमेंट करेगा. सो जो डिफरेंट पार्टीज हैं जिनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी फर्म के साथ कनेक्शन है और वो आपकी फर्म के साथ रिलेशनशिप में है, तो आपकी फर्म की वो फाइनेंशियल एनालिसिस जो है वो बेस्ड ऑन देयर रिलेशनशिप वो फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे और रेशियोज कैलकुलेट करेंगे. और यूजुअली दीज वैल्यूज ऑफ द that we use in the ratio analysis we extract it from the financial statements. Objectives of the ratio analysis. सबसे पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि why we are calculating ratios. उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उनके पर्पस क्या हैं, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं पहले. फर्स्ट वन इज इट हेल्प्स इन मेजरिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी. As you know that profit is the key requirement of every business and only profitable business can survive and it can extend or make expansion. And thus if we say that the business has earned a certain amount of profit, we are not sure that how good or bad it is. So for that reason we need to calculate the profitability ratio, which may include the gross profit or net profit, and we should also calculate the expense ratio as it provides the profitability of the firm, and the management can track down the gray areas and the work upon them for improvement के कहाँ पे जो आपके expenses जो हैं वो ज्यादा हुए हैं उसकी वजह से आपका जो profit है वो सफर कर रहा है. It helps in second one is it helps in evaluating the operational efficiency. Some ratios are targeted to evaluate the degree of efficiency of the firm, how a firm is handling its assets या जो बाकी आपकी resources हैं. And it is must for a firm that the assets and financial resources are well utilized and unnecessary expenses levels are kept to minimum. कि जहाँ पे आपको कम से कम अपने expenses रखने हैं और अपनी assets को proper utilization उनकी करनी है. And to get an overall picture of the efficiency of firm's assets, asset turnover ratios हैं जिनसे आपको आपकी फर्म की एफिशिएंसी के बारे में पता चलता है. The third one is maintaining a liquidity.
लिक्विडिटी जो है क्योंकि आपने शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बोरोइंग करनी होती है, तो जो क्रेडिटर्स होते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहां से आपने बोरोइंग की हुई है, तो उन्होंने आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करके देखना है कि वेदर यू आर लिक्विड इनफ, आपको लोन दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आपकी समटाइम फॉर्म के अंदर अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है फाइनेंसेस की, और अर्जेंट रिक्वायरमेंट के लिए आप फिर बोरोइंग की तरफ जाते हैं ताकि आपको लोन ग्रांट किया जाए और फिर आप अपनी जो फाइनेंशियल नीड्स हैं उनको फुलफिल कर सकें। तो उसके लिए आपके जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, वो लिक्विडिटी चेक करेंगे। देन डिटर्मिनिंग द फाइनेंशियल हेल्थ, there are some ratios that determine the overall financial health and performance of the company. This can be indicated by determining the overall long-term solvency of the firm, and this helps in judging whether there is too much pressure on the assets or if the firm is over leveraged, कि उसने बहुत ज्यादा डेट लिया हुआ है, and thus to avoid the future liquidation problems, the business has to quickly recognize this that आपकी फाइनेंशियल रेशियो, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ जो है कंपनी की वो कैसी है, और इस तरह की रेशियो जो है वो हेल्पफुल होती हैं ऐसे सिनेरियोज के अंदर जहां पे आपके जो आपकी फर्म जो है वो बहुत ज्यादा प्रेशर के अंदर है और आपने बहुत ज्यादा डेट लिया हुआ है, तो इन दैट केस फिर आपको डेट टू इक्विटी रेशियो या इस तरह की रेशियो जो है वो आपने कैलकुलेट करके तो आप देख सकते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। Another objective is helps in comparing. There are certain ratios used to help in comparison of the benchmark prevalent in the industry to get a better outlook of the financial performance and position of the company. Business can take rectifying actions if the standard is not maintained by the company, and there are certain ways where you compare your current ratio with your previous year ratio to understand the track record of the कंपनी। या आप जो करंट ईयर में रेशियोज कैलकुलेट करते हैं, जो प्रीवियस ईयर की रेशियो है उनको कंपेयर करेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कंपैरिजन से कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या उसकी पोजीशन जो है वो मार्केट के अंदर कैसी है या ओवरऑल इंडस्ट्री के अंदर कैसी है, तो वो कंपैरिजन जो है वो आप कर सकते हैं। सेकेंडली आप किसी और अपने कंपेटिटर के साथ भी कंपैरिजन कर सकते हैं, मार्केट के अंदर और जो कंपनीज हैं उनके साथ भी कंपैरिजन कर सकते हैं। There are limitations of the ratio analysis as well. The first one is use of historical data. As you know that all the information used in the ratio analysis is based on the historical numbers, and these data are drawn from the historical actuals or by no means will remain the same in the future as business. कि जहाँ पे आप और ये वैल्यूज जो हैं ये ओवर द टाइम ये चेंज हो रही हैं, जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है तो आपकी फाइनेंशियल बिजनेस की परफॉर्मेंस के अंदर भी चेंजेस आ रही हैं, आपकी वैल्यूज के अंदर भी चेंजेस आ रही हैं, तो आप हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर अपनी कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं जो कि फैक्चुअल जो करंट सिचुएशन है उससे वेरी कर रही होती है। The second point is the concept of inflation. When we are comparing the period wise numbers for trend analysis, जब हमने previously देखा, हमने trend analysis किया, and if in between the periods the inflationary rate has changed, the comparison make no sense. For example, आपके जो investments के अंदर amount show हो रही है और next year के अंदर आप जब trend analysis करते हैं तो नेक्स्ट ईयर के अंदर उसका जो डिफरेंस है तो उसके अंदर हम इन्फ्लेशन का इफेक्ट जो है उसको कैलकुलेट नहीं कर रहे होते, और उसकी वजह से भी तो जो आपके एसेट्स हैं वो ज्यादा शो हो रहे हैं। तो ये बात भी है कि आप इन्फ्लेशन को जब कंसिडर नहीं करेंगे तो फिर इन कंपैरिजन का उस ट्रेंड एनालिसिस का फिर वो पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा होता। Changes in operation. A business can go a drastic change in the operation due to certain unexpected needs, and thus using the data of the past and making a judgment based on that data doesn't fulfill the conclusion. ये हमने डिस्कस इसको पहले भी किया था कि आप जब
सडन कोई अनसर्टन चेंज आ जाता है, और बट आप जो एनालिसिस कर रहे हैं वो अपने प्रीवियस पास्ट डाटा के ऊपर कर रहे हैं, तो वो उस जो अनसर्टन इवेंट है उसको कैप्चर नहीं कर रहा होता, और जो कि आपकी प्री चेंजेस और पोस्ट चेंजेस उस पर्टिकुलर इवेंट के बाद से पहले की चेंज और उस इवेंट के बाद की चेंज है, उसको भी आप कंसीडर नहीं कर रहे होते इन कैलकुलेशंस के अंदर। तो वहां पे ये इस मेथड की थोड़ी लिमिटेशंस हो जाती हैं। देन द पॉलिसीज ऑफ अकाउंटिंग, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट फर्म्स हैं, हर एक की अपनी अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी के अकॉर्डिंगली वो अपनी स्टेटमेंट्स बनाते हैं, वो अपनी रेशियोज एनालिसिस करते हैं और फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं। तो जब आप कंपेयर करते हैं तो वो उसका कंपैरिजन जो है वो एज सच, अगर तो आप सेम रूल को फॉलो कर रहे हैं, अकाउंटिंग रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, फिर तो आप कंपैरिजन उसका कर सकते हैं। लेकिन आप डिफरेंट रूल्स को फॉलो करके अपनी स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, तो फिर वहां पे जो कंक्लूजन और जो रिजल्ट्स हैं उनके अंदर बाइसनेस सी आ जाती है। नो स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ रेशियोज, वही बात है कि हर फर्म जो है वो अपने हिसाब से रेशियोज की कैलकुलेशन करती है, कोई एक खास पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है रेशियोज की कैलकुलेशन के लिए। जब कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है तो हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी अपनी ईज के हिसाब से रेशियोज की कैलकुलेशन करती है, और हर ऑर्गेनाइजेशन का ये पर्पस होता है कि वो खुद को बहुत ही प्रॉफिटेबल पोर्ट्रे करे। तो वो उनको जो सूटेबल रेशियोज लगती हैं, जो सूटेबल अकाउंटिंग के अकाउंटिंग वेज लगते हैं, वो उसके अकॉर्डिंगली अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं और अपना एनालिसिस करते हैं, ताकि वो मार्केट में खुद को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस शो करें। ऑब्वियसली वो प्रॉफिटेबल शो करेंगे तो उसका इम्पैक्ट अच्छा होगा, उनकी कंपनी, उनकी फर्म का इमेज बिल्ड होगा, उनको बैंक्स जो है वो लोन ग्रांट करेंगे, इन्वेस्टर्स उनके इन्वेस्टमेंट करेंगे उनकी बिजनेस के अंदर, उनके प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो इसलिए फर्म को अपने एक इमेज बिल्ड करने के लिए भी ये टूल्स एंड टेक्निक्स को वो उन टूल्स एंड टेक्निक्स को फॉलो करते हैं जो उनको सूट कर रहे हैं। इग्नोरेंस ऑफ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, क्योंकि रेशियो एनालिसिस या फाइनेंशियल एनालिसिस प्योरली बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैं, तो यहाँ पे हम क्वालिटेटिव को थोड़ा उनको कर लेते हैं, इग्नोर कर लेते हैं क्वालिटेटिव टूल्स को या क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को, जो कि एक्चुअल जो कंप्लीट इमेज होता है वो फिर हमें नहीं मिल पाता। तो जस्ट बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव आप डिसीजन मेकिंग भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के एक इंट्रो में ये बात की थी कि हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स की कैलकुलेशन क्वांटिटेटिवली करनी है, प्लस हमें एडिशनली इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, और वो इंफॉर्मेशन क्वालिटेटिव होती है जिसको हम क्वांटिटेटिव के साथ उसको मैच करके और फिर हम डिसीजन लेते हैं। अपॉर्चुनिटीज फॉर विंडो ड्रेसिंग, फर्म्स के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो खुद को अच्छा पोर्ट्रे करें, और थ्रू दीज टूल्स एंड टेक्निक्स वो खुद को अच्छी पिक्चर दे रहे होते हैं फर्म की, और बता रहे होते हैं लोगों को, पब्लिक को, इंस्टीट्यूट्स को, दैट दे आर वेरी प्रॉफिटेबल, और अपनी रेशियोज के हिसाब से, अपनी एनालिसिस के थ्रू वो खुद को अच्छा बेटर पोर्ट्रे कर रहे होते हैं। बट एक्चुअली उससे जो उनका फॉर्म के अंदर जो एक्चुअल पोजीशन होती है वो उनकी जो पोर्ट्रे पोजीशन होती है उससे डिफरेंट होती है। द मिक्स ऑफ हिस्टोरिकल एंड एक्चुअल नंबर्स, ratio analysis can be misleading at times because elements from the profit and loss statements are based on the actual cost, whereas the elements on the balance sheet are based on the historical data, and thus comparing the elements as a mix of both can be deceptive, और यहाँ पे उनको बाइसनेस क्रिएट हो जाती है, जहाँ पे हम इनकम स्टेटमेंट का कोई कंपोनेंट लेके और बैलेंस शीट का कोई कंपोनेंट लेके रेशियोज कैलकुलेट करते हैं और फार्मूला के अंदर उनकी वैल्यूज पुट इन करते हैं, तो वहां पे जो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं वो उनके अंदर बाइसनेस ही होती है। देन कम्स टाइम इफेक्ट, some ratios are picked from the balance sheet which is prepared only on the last day of the accounting period, and इसके ऊपर हमने बात ये की थी कि बैलेंस शीट एट द और
कोई अनसर्टन इवेंट हो जाता है लास्ट डे के अंदर और आपकी सडन डिक्लाइन आ जाती है, लेकिन वो चीज जो है वो आपके ओवरऑल जो आपका पूरा टाइम पीरियड है जिसके लिए आप वो बैलेंस शीट बना रहे हैं उसके ऊपर वो इम्पैक्ट करेगा। ऑल्दो के थ्रू आउट ईयर आपका बिजनेस जो है वो बहुत अच्छा रहा, प्रॉफिटेबल रहा, या आप उसको हेल्दी कंसीडर कर रहे थे, लेकिन एट द लास्ट मोमेंट जो है वो आपका ड्रास्टिक सडन अनसर्टन चेंज की वजह से आपका डिक्लाइन आ गया और वो आपकी पूरी परफॉर्मेंस के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। तो टाइम का बहुत इम्पैक्ट होता है, इसका इफेक्ट आता है, तो वो चीज आपकी जो रेशो के थ्रू आप उसको कवर नहीं कर सकते। तो ये एक इसकी लिमिटेशन, इस एंगल से देखें तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। Some basic types of ratios that we are going to study are liquidity ratio, solvency ratio. We will calculate all these ratios: profitability ratio, debt leverage ratio, activity ratio, efficiency ratio, earning turnover ratios and market ratios. और भी जो कोई अगर यहाँ पे कोई एक आध कोई मिस हो गई है तो हम सारी रेशियोज को आज के लेक्चर में कुछ को कवर करेंगे और बाकी जितनी भी जो भी रेशियोज होंगी उनको अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर सब रेशियोज को कवर करेंगे। स्टार्टिंग विद द लिक्विडिटी रेशियो। Liquidity ratio helps in measuring the ability of the company to take care of its short-term debt and obligations. जो आपने शॉर्ट टर्म में लोन लिए हुए हैं, whether you are able to pay back those loans or not. और हायर लिक्विडिटी रेशियो जो है वो रिप्रेजेंट करती है कि कंपनी जो है वो हाईली रिच इन कैश है, क्योंकि एज द नेम सजेस्ट के लिक्विड कितनी लिक्विड, जैसे आप साइंस में देखें तो लिक्विड जो है एनीथिंग दैट चेंजेस इट्स शेप, कि एक चीज से दूसरे में आप कन्वर्ट करते हैं तो वो उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है। जैसे वाटर को ग्लास से प्लेट में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी चेंज हो जाती है। लाइकवाइज फाइनेंस के अंदर लिक्विडिटी का मतलब है कि कितनी इजिली कन्वर्टेबल है। तो हमने ये देखा था कि बैलेंस शीट के अंदर हमने जो टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटीज की डिवीजन की हुई है वो बेस्ड ऑन लिक्विडिटी है, कि क्या कितनी जल्दी कन्वर्टेबल इनटू कैश है, तो उसको हम करंट एसेट्स के अंदर या करंट लायबिलिटीज के अंदर कंसीडर करते हैं, और जो मोर देन 1 ईयर है उसको हम लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर या नॉन करंट एसेट्स के अंदर उसको कंसीडर करते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट के साथ हम लिक्विडिटी को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि लिक्विडिटी कितनी जल्दी कंपनी जो है वो अपने लोन्स का पे बैक कर सकती है। लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर हमारे पास 3 रेशियोज हैं: करंट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, क्विक रेशियो। इसको एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं और क्विक रेशियो भी कहते हैं, और कैश रेशियो। तो इन तीनों रेशियोज को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। करंट रेशियो। करंट रेशियो एज द नेम सजेस्ट कि अब यहाँ पे इसके नाम से ही अब यहाँ पे आपको रेशियोज को उनको समझने की कॉन्सेप्ट समझ लें, उसका नाम के अंदर ही उसका फॉर्मूला है। जैसा कि इसका करंट रेशियो है, करंट की फिगर अब आप देखें कि यहाँ पे वही एलिमेंट्स वही कंपोनेंट्स आएंगे जिनके साथ करंट का वर्ड यूज होगा। तो हम ये देखते हैं कि बैलेंस शीट में हमारे पास करंट एसेट्स होते हैं और करंट लायबिलिटीज होती हैं। तो रेशियो दो किसी कंपोनेंट के दरमियान ही कैलकुलेट हो सकती है। तो करंट रेशियो जो है वो करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटीज है। तो इसको हम इससे ये मेजर करते हैं कि कितनी कंपनी कितनी एबिलिटी रखती है कि वो अपनी जो एक साल के अंदर जो है वो लोन्स की ऑब्लिगेशंस या डेट ऑब्लिगेशंस को पे बैक कर सके। तो करंट रेशियो के थ्रू आपको ये आइडिया हो जाता है इसकी फिगर से कि कितने आप एबल हैं अपने लोन्स को पे बैक करने के लिए। अब हमने ये देखा था कि करंट एसेट्स के अंदर एलिमेंट्स लाइक कैश हो गया, आपके बैंक के अंदर जो आपके चेकिंग अकाउंट के अंदर अमाउंट है, टेम्पररी इन्वेस्टमेंट होगी, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, सप्लाईज, जो आपकी प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं वो आपके सब करंट एसेट्स का पार्ट होते हैं। और करंट लायबिलिटी में आपके नोट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल, वेज पेबल, या जो आपकी अक्रूड सैलरीज हैं, टैक्सेस जो आपने पे करने हैं, इंटरेस्ट जो आपने पे करना है विद 1 ईयर, तो वो सारे कंपोनेंट वो सारे एलिमेंट्स जो हैं वो करंट लायबिलिटीज के। तो इनसे इस रेशियो से हम
बेसिकली ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि शॉर्ट टर्म के अंदर आप कितनी अपनी ऑब्लिगेशंस को जो पे कर सकते हैं, उनको बियर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें आइडिया होगा कि इसकी क्या वैल्यू होती है, जो कि जितनी ज्यादा इसकी वैल्यू होती है, मोर देन 1 होती है, तो उतना कंपनी के लिए अच्छा होता है, और उतना ही आपके जो क्रेडिटर्स हैं वो जब आपको लोन ग्रांट कर रहे होते हैं तो उनको भी लगता है कि आप पे बैक लोन जो है टाइमली पे बैक कर लेंगे। द सेकेंड रेशियो वी हैव इज एसेट टेस्ट रेशियो। अब इसमें समझने की बात ये है कि ये भी पार्ट है करंट एसेट्स का, और करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज का ही पार्ट है। लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि करंट एसेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे थे जो कि इसको आप इस तरह समझ लें कि करंट एसेट के अंदर हमने करंट रेशियो के अंदर हमने ये बात की थी कि विद इन 1 ईयर हम पे बैक कर सकते हैं या नहीं। लेकिन एसेट टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो, जैसे कि इसके नाम से ही आइडिया हो रहा है कि थोड़ा और क्विकनेस की तरफ हमने कन्वर्ट लिक्विडिटी की तरफ जा रहे हैं कि कितनी जल्दी क्विकली आपके जो एसेट्स हैं वो कन्वर्टेबल हो सकते हैं। 1 ईयर तो बहुत ज्यादा टाइम है। आप इसको इस तरह कंसीडर कर सकते हैं कि अगर आपको कल या आपको इसको डिफरेंशिएट आप करंट रेशियो से इस तरह कर सकते हैं कि आपको अगर कल चाहिए हो कैश, तो आपके पास कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको आप कल तक या विदाउट एनी प्रोसेसिंग आप उसको कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जब आप ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर कोई प्रोसेसिंग का पार्ट हो, ये कि उसको प्रोसेस करके और फिर उससे आपको कैश मिल रहा हो, तो फिर उसको हम निकाल लेंगे, वो क्विक के अंदर नहीं आता। लेकिन बाकी जो करंट एसेट्स के एलिमेंट्स हैं जो कि इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश हैं, उनको हम क्विक की कैटेगरी के अंदर रखेंगे। यूजली आप देखें कि करंट एसेट्स के अंदर हमारे पास जो कैश होता है, कैश तो रेडली ऑलरेडी इन कैश है, लिक्विड है। आपके चेकिंग अकाउंट के अंदर अमाउंट पड़ी है, वो भी आपके कैश के अंदर ही समझ लें। आप उसको विड्रॉ विद इन नो टाइम एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं, वैसे विड्रॉ चेक से विड्रॉ कर सकते हैं। देन योर अकाउंट रिसीवेबल्स, अकाउंट रिसीवेबल का एक टाइम गिवन आपको होगा कि उस टाइम के ऊपर आपको वो पेमेंट हो जाएगी, तो उसके अंदर भी कोई प्रोसेसिंग इन्वॉल्व नहीं है। देन आपकी जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, अब जो आपने एक चीज को एक्सपेंस को ऑलरेडी पे कर दिया, अब वो आपको कैश तो मिलना नहीं है, उसको आप कैश के अंदर कन्वर्ट भी नहीं कर सकते। अब तो उस प्रीपेड एक्सपेंस के एज अ रिजल्ट ऑफ प्रीपेइंग एक्सपेंस आपको सर्विसेज मिलेंगी, या आपको कोई प्रोडक्ट मिलेगी, या आपको एक्सपेंसेस की आपने जो पेमेंट की है उसके रिटर्न में आपको जो सर्विसेज या प्रोडक्ट कुछ मिलना होगा, सप्लाईज मिलेंगी, कुछ मिलेगा, तो आप उसको भी इसके अंदर कंसिडर नहीं कर सकते। तो रह गई एक इन्वेंट्री। इन्वेंट्री ये चीज है, हमने बात की थी कि इन्वेंट्री के अंदर हमारे पास रॉ मटेरियल भी है, प्रोसेस्ड गुड्स भी हैं, और हमारे पास फिनिश्ड गुड्स भी हैं। अब जो फिनिश्ड गुड्स हैं वो जब तक सेल नहीं होंगी तो कैश नहीं आएगा, तो उसके अंदर अब इन्वॉल्व है एक प्रोसेस, इन्वॉल्व है एक एडिशनल स्टेप इन्वॉल्व है कि जब तक आपकी अब रॉ मटेरियल है, तो जब तक उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो प्रोडक्ट नहीं बनेगी, फिर प्रोडक्ट बनेगी, फिर उसने सेल होना है, फिर उसका रिटर्न आएगा, तो उसके अंदर मतलब 2-3 स्टेप्स इन्वॉल्व है। तो इट मीन्स के इन्वेंट्री वो पार्ट है कि जिसको हमने क्विक करंट एसेट्स के से डिडक्ट कर देना है, प्लस आपका जो प्रीपेड एक्सपेंस है वो उसको आपने डिडक्ट कर लेना है। तो करंट एसेट्स से हम जब इन्वेंट्री को माइनस करके और फिर उसको करंट लाइबिलिटीज का उसकी रेशियोज कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास क्विक रेशियो जो है वो कैलकुलेट होगी। और अब जो आपके अकाउंट रिसीवेबल हैं वो भी आपको टाइम के ऊपर मिल सकते हैं, कैश इक्विवेलेंट्स आपके ऑलरेडी लिक्विड हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती हैं, वो भी आपकी इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश हैं, अकाउंट रिसीवेबल्स हैं। ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि आप करंट लाइबिलिटीज के साथ इनकी रेशियोज देंगे तो आपकी क्विक रेशियो कैलकुलेट होगी। द थर्ड वन इज कैश रेशियो। अब अगर आपको विद इन अर्जेंटली कुछ रिक्वायरमेंट है, आपने
अर्जेंट बेस के ऊपर आपके पास कितना कैश अवेलेबल है, आपने वो चेक करना है। पहले हमने बात की करंट एसेट्स की जो कि विद इन 1 ईयर, देन हमने बात की क्विक एसेट की जो कि अगर आपके पास 1-2 दिन का टाइम है, लेकिन अब आपको अर्जेंटली कैश चाहिए, तो इन दैट पर्टिकुलर केस आप जो रेशियो कैलकुलेट करेंगे वो होगी कैश रेशियो। अब कैश रेशियो के अंदर या तो कैश और कैश इक्विवेलेंट्स हैं जो कि आपके चेकिंग अकाउंट के अंदर, बैंक के अंदर आपके पास कैश अवेलेबल है, जो रेडली कैश आपके पास अवेलेबल है वो हो गया, और आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ये 3 वो एलिमेंट्स हैं जिनकी बेस के ऊपर आप कैश रेशियो जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये आपको विद इन लाइक वेरी शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टर्म जो डेट होता है कि आपने अभी के अभी पेमेंट करनी है, तो उसके लिए आपने ये देखना है, या आपने ये देखना है कि अभी आपके पास रेडली कितना कैश अवेलेबल है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आप कैश रेशियो कैलकुलेट करते हैं। और ये भी आपको ये भी सो हमने देखा कि लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर हमारे पास 3 स्टेप्स के अंदर रेशियोज आई हैं, करंट रेशियो, देन क्विक रेशियो एंड देन कैश रेशियो। Let's start with calculating these liquidity ratios with the help of this illustration. यहाँ पे particulars given है हमारे पास बैलेंस शीट के, और इनकी अमाउंट गिवन है, और हम सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना है करंट रेशियो, करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज। तो करंट एसेट्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 2 लाख, और करंट लाइबिलिटीज जो है वो हमारे पास है 1 लाख। तो इसकी जो कैलकुलेशंस करेंगे तो हमारे पास आंसर है 2। अब देखिए यहाँ पे आपकी लाइबिलिटीज के डबल है आपके एसेट्स, तो जो मतलब आपके एसेट्स इतने हैं कि वो आपकी लाइबिलिटीज को इजीली कवर कर सकते हैं, और उसमें आपके पास जो आंसर आ रहा है वो शो कर रहा है कि आपकी लाइबिलिटीज आपके एसेट्स के डबल हैं। सेकेंडली वी विल कैलकुलेट दिस करंट रेशियो। करंट रेशियो के अंदर क्विक रेशियो के अंदर हमारे पास क्विक एसेट्स में हमने ये बात की थी कि वो होते हैं जो कि विदाउट एनी प्रोसेस अगर वो कैश में कन्वर्टेबल हो जाएं कल परसों के टाइम पीरियड के अंदर, तो हम उनको क्विक के अंदर कंसीडर करेंगे। और क्विक एसेट रेशियो या एसेट टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो का फॉर्मूला ये है कि करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री ओवर करंट लाइबिलिटीज। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कैश प्लस कैश इक्विवेलेंट्स, एक एक कंपोनेंट को आप अलग से मेंशन करके लिख के तो आप इसकी कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं, या इसको आप क्विक एसेट ओवर करंट लाइबिलिटी भी कह सकते हैं। तो इसको यहाँ पे इस बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास कैश की फिगर जो है वो करंट चेकिंग अकाउंट में 20,000 है, अकाउंट रिसीवेबल 30,000 है, और इन्वेंट्री जो है वो हमारे 50,000 है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे 50,000 है। तो अब यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हमने एक्सक्लूड कर देने हैं, इन्वेंट्री क्योंकि उसके अंदर भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। तो ये 2 कंपोनेंट्स जो है 1 लाख के हम एक्सक्लूड करके बाकी जो वैल्यूज हैं वो हमारी क्विक एसेट की वैल्यूज हैं। तो 50,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000, तो ये 1 लाख की वैल्यू बनती है जो कि क्विक एसेट्स हैं, और जिनकी कैलकुलेशन जो है वो हमने करंट लाइबिलिटीज के साथ करनी है, एंड द आंसर वुड बी 1। कि जितने आपके क्विक एसेट्स हैं उतनी आपकी लाइबिलिटीज हैं, तो आप अपनी लाइबिलिटीज को इजिली पे आउट कर सकते हैं। तो थर्ड रेशियो इज कैश रेशियो। कैश रेशियो के अंदर हमने बात की थी कि जो बिल्कुल रेडली अर्जेंट बेस के ऊपर आपको कैश चाहिए हो, तो उसके अंदर जस्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स या मार्केटेबल सिक्योरिटीज आती हैं। अब कैश है हमारे पास, चेकिंग अकाउंट के अंदर अमाउंट है, इसमें हम अकाउंट रिसीवेबल को भी कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि उसकी भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है। तो इसमें हमारे पास कैश होगा और कैश इक्विवेलेंट्स हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो जस्ट 50,000 प्लस आपकी 20,000 का चेकिंग अकाउंट। तो ये आपका जो आंसर है इसका वो होगा 0.7।
विच शोज कि आपकी जो कैश रेशो है वो 70% आपकी करंट लाइबिलिटीज को मीट कर सकती है, विच इज अगेन अ गुड फिगर कि आपकी जो रेडली कैश और कैश इक्विवेलेंट्स हैं वो आपकी 70% ऑफ लाइबिलिटी को बियर कर सकते हैं, और अच्छी रेशो है ये भी। लेकिन जब आपकी रेशो 1 एंड अबव होती है या जितनी ज्यादा होती है, अब इस यहाँ पे इन कैलकुलेशन से हमें ये आइडिया हो रहा है कि जितनी आपकी रेशो जितना आपका जो आंसर है वो 1 से ज्यादा होगा, उतनी आपकी फर्म की हेल्थ शो होगी, उतनी आपकी फर्म की लिक्विडिटी शो होगी, उतना पता चलेगा कि आप अपने लोन्स की ऑब्लिगेशंस को या डेट ऑब्लिगेशंस को कितनी हद तक बियर कर सकते हैं आपके थ्रू योर करंट एसेट्स। सो इन रेशियो से हम ये एनालाइज करते हैं स्पेसिफिकली दीज लिक्विडिटी रेशियो से कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन अपने डेट्स को कितनी अच्छे तरीके से उनको एक तो बियर कर सकती है और उनको रिटर्न बैक कर सकती है, अपनी लोन ऑब्लिगेशन डेट ऑब्लिगेशंस को मीट कर सकती है। और ये हम शॉर्ट टर्म लोन्स की बात कर रहे हैं थ्रू योर करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज के अकॉर्डिंगली आप अपने शॉर्ट टर्म डेट ऑब्लिगेशंस को किस तरह मीट कर सकते हैं। Regarding this lecture, any question and queries are most welcome. Thanks for joining. Allah Hafiz.